So climate change becoming a very, very buzzword, important buzzword in today's world. Healthy soil can actually combat climate change. जो अन्न हम खाते हैं, जो सॉइल ठीक नहीं है, तो क्या उसके सेहत में भी असर पड़ता है लोगों के? नहीं, ऑफ कोर्स हमें आदत पड़ चुकी है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करना, पेस्टिसाइड यूज़ करना। अन्न खा रहे हैं या जो सब्जियां खा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। कभी भी नहीं, कैसे हो सकती है? कल डिसाइड किया कि इस ज़मीन पे मैं ऑर्गेनिक खेती करूँगा, उस ज़मीन को तैयार करने के लिए भी 2 साल 3 साल लग सकते हैं, रिक्लेम करने के लिए। उनके फेसबुक में और लिंक्डइन में हज़ारों लाखों फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो तन्हा है। Which is a fact. People, farmer's son doesn't want it to do farming. Yeah. Digital world always showcase you as something which you are not. Farming is also a business. नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके वजह से मैं मीडिया में आया। जी हाँ, मैं देबू की बात कर रहा हूँ और आज ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद मुझे देबूदा फिर से मिले हैं। आई लव हिम बिकॉज आप कह सकते हैं यस वी आर सोलमेट। ज़रूरी नहीं है कि मेल फीमेल ही सोलमेट हो, कोई भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट सोल and it's all about the goal that we are seeing. Our goal is common. Thank you so much Devuda for coming to the studio. आपने एक चीज़ कहा था कि सोल का कोई कलर नहीं होता है। Irfan bhai, first of all, thank you very much for having me here because, and thank you for making me the Debu, which has created an impact in your life. Maybe I am the duplicate Devu, but I am pretty original. I will ensure that probably this will also create a new colors and new horizons for your future and your life. Coming back to the question you were telling, yes, I truly believe soul doesn't have a color and soul doesn't have a religion, soul doesn't have a structure. Soul is as good as there and not there. But it's very much there because that is what matters most in today's life. It was there, it is there, and it will always be there. आपने कहा है कि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है और इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए आपके पास कुछ फार्मूला है जो हवा से नहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ये क्या फार्मूला है? Yes, I think मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड आज ऐसी स्थिति में है जहाँ पे दिस इज़ अ नोन फैक्ट इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन दैट दिस वी हैव ओनली 60 years of farming left. And I think, yes, we are technologically now becoming big. The whole world has AI, artificial intelligence, whatnot. But then, end of the day, I think for even me and for this whole world, the thing that matters most is food. And very deeply rooted is soil because I think in today's world we are pretty much interested and excited and absolutely concerned, at least from a knowledge per se, that we have a climate change. So climate change becoming a very, very buzzword, important buzzword in today's world. But आप अगर थोड़ा अलग तरीके से सोचे और if you go through the let's Google it because I think Google is the answer for everything. So if you Google it, you will get to see a healthy soil. If we talk about climate change, there are 25 ways that has been defined and to combat climate change, because climate change we know with all the imperative ingredients we are using in today's life are definitely impacting the change of this climate, which is known to us. Healthy soil can actually combat climate change. And healthy soil, if you wanted to combat climate change, then we need to look at soil from a very different perspective.
because soil, don't forget, the soil is also like a medicine, and soil has ingredients and properties, the microbes. It's a different world altogether. The soil is a different world altogether. So right देवुदा, behind आपने us. आपने शुरू में ही कहा था कि एक ज़माना था जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो खेतों में जब हम लोग खुदाई करते थे तो केंचुआ निकल आता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या अब नहीं निकलता है क्या? नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना, पेस्टिसाइड यूज़ करना, बिकॉज वी ऑलवेज नीड क्विक सॉल्यूशंस, एंड वाइल डूइंग सो आई डोंट से कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है, बट ये जो बैलेंस जो है ना, हम कहीं ना कहीं बिगाड़ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर डिज़ायर एंड नीड, एंड much more, and all this will finally leads to that. तो yes, ये सही है कि आज से अगर आप 30 साल 50 साल पहले चले जाओ तो soil, if you try to see what is there in the soil, that you will get to see that there are scaturus and all this in the microbial atmosphere of the soil was different. Today it is not there because of use of उससे excessive प्रोडक्शन में भी pesticide फर्क पड़ता होगा? देखो, प्रोडक्शंस तो एक चीज़ हो गई, प्रोडक्शंस तो आप उन पे और ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा चीज़ों को दे के कुछ हद तक बढ़ा सकते हो, बट इफ़ यू लुक फ्रॉम टुडेज Quality. पॉइंट ऑफ व्यू, यस, क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स आप एक सॉइल की एक कैपेबिलिटीज़ होती है, आप अगर उस पर दोबारा से उसे रिवाइटलाइज नहीं करोगे तो ये सॉइल फाइनली जाके आपको प्रोडक्टिविटी आज तो दे रही है, कल नहीं देगी, ये तो तय है। तो वो जो अन्न हम खाते हैं, जो सॉइल ठीक नहीं है, तो क्या उसके सेहत में भी असर पड़ता है लोगों के? नहीं, ऑफ कोर्स, आप देख लो ना, अब जो द मिल्क वी आर ड्रिंकिंग एंड वी थिंक दैट दैट्स कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, आई हैव सीन द काउ, आई हैव सीन एवरीथिंग, इफ यू चेक दैट मिल्क यू विल गेट टू सी द पेस्टिसाइड्स, यू विल फाइंड पेस्टिसाइड्स इन इट, बिकॉज एक गाय बाहर जाके या तो बाहर से जो फीड्स दिया जाता है वो, या तो फिर जमीन में द ग्रासेस एंड ऑल दिस इट ईट्स, everywhere there is pesticides, everywhere, because the pesticide you spray today, it is going to remain there in the soil, in the plants for next many years. So when that same cow eating those grasses, having those foods from the environment, it also going to retain those pesticides. तो इसका So मतलब milk is also देवदा, having आपका कहने का मतलब है जो कि हम अन्न खा रहे हैं या जो सब्जियां खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है? कभी भी नहीं, कैसे हो सकती है? और मैं तो ये एक बड़ा, अगेन अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी, ऑर्गेनिक, एक आप आज से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत किया है किसी ज़मीन पे, वो कल ही ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, क्योंकि उस सॉइल को रिक्लेम करने में एक तो आप कोई भी इनऑर्गेनिक इनपुट्स उस पर लगा नहीं सकते हो, और उस सॉइल को रिक्लेम करने के लिए एक समय देना होगा, उस समय को, उस सॉइल को रिक्लेम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने होंगे। आप एक ज़मीन पे कल डिसाइड किया कि इस ज़मीन पे मैं ऑर्गेनिक खेती करूँगा, उस ज़मीन को तैयार करने के लिए भी 2 साल 3 साल लग सकते हैं रिक्लेम करने के लिए, क्योंकि उस सॉइल में जो पेस्टिसाइड्स हो, जो इंग्रेडिएंट्स, जो पेस्टिसाइड के एलिमेंट्स जो रखा हुआ है और रह गया है, वो उसे रिमूव करने के लिए भी तो समय चाहिए। आप उस पर कुछ भी उगाओ, उसमें रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो वो रहेगा ही रहेगा। तो आई डोंट से कि तो इसका ऑर्गेनिक समाधान पॉसिबल क्या है इसका? हाँ, it's a process. I don't think pure organic is only the process, because again you have to maintain a balance. So I think एक प्रॉपर नॉलेज होना लोगों की बहुत ज़रूरत है, कि जहाँ पे आप एक बैलेंस अप्रोच से चले, आप एक स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करो टू यूज़ द केमिकल्स, यूज़ द इंग्रेडिएंट्स, एंड साइड बाय साइड आप इंक्रीज करो बायो फर्टिलाइज़र, बायो एलिमेंट्स, जो शुरुआत से जो हम बचपन से देख के आ रहे हैं कि काउ डंग्स एंड ऑल दिस, देयर आर प्रोसेस टू मेक बायो फर्टिलाइज़र एंड स्टफ लाइक लेकिन दैट। देवदा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए, और किसान के बच्चे वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, वो खेती करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे IT सेक्टर में हैं
और काम कर रहे हैं, वो लैपटॉप से तंग आ गए हैं, वो गांव में वापस जाना चाहते हैं। तो ये जो इन्फ्लक्स हुआ है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्या उन पढ़े लिखे बच्चों को आप इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे आप ट्रेन करेंगे? क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में है ताकि ये वो बच्चे खेती को बेहतर कर सके? नहीं, देखो ऐसा है कि इन टुडेज वर्ल्ड, यस, विच इज़ अ फैक्ट, पीपल, फार्मर्स सन डजंट वांटेड टू डू फार्मिंग, बट एट द सेम टाइम अ वेरी एजुकेटेड पर्सन comes back to the village and say, hey, let's do farming, Right. and let's create a business around it. It's all about the approach and mentality. And I think if you go through in the past 5-6 years, there are multiple agri entrepreneurs जो इसी ऑर्गेनिक, एटलीस्ट द मिशन इज टू क्रिएट समथिंग विच इज सेफ, ये हो रहा है। चाहे वो इनोवेटिव सॉइल टेस्टिंग किट हो, चाहे ड्रोन हो, और चाहे एक बहुत ही एजुकेटेड मास दोबारा फार्मिंग को एज ए प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हो, ये सब भी हो रहा है। सो देर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस, दैट्स हाउ द whole world balance itself. So I am very positive that yes, there are enough reasons to become frustrated कि क्या हो रहा है, लेकिन there are also सिल्वर लाइन जहाँ पे एक एजुकेटेड मास सोचते हैं और समझते भी हैं कि एग्रीकल्चर इज़ इम्पेरेटिव, विदाउट एग्रीकल्चर वी कैनॉट लिव, एंड दे आर कमिंग बैक इन अ डिफरेंट अप्रोच, एंड आई विश दैट मेनी मोर पीपल, दैट्स वाई आई वांटेड टू हैव अ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स लाइक दैट, जहाँ पे लोग उस इंस्टीट्यूट से या उस कोर्स के बाद बाहर जाके ये ना सोचे कि फार्मिंग इज़ ओनली ए कल्चर फॉर मी, जो मेरे पापा ने करता था। नहीं, फार्मिंग इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, एंड अ प्रॉपर सस्टेनेबल बिजनेस, जहाँ पे सॉइल भी इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी को भी आप साथ रखते हो, प्लस आप अपने घर को सही तरीके से संभाल भी सकते हो और खुद को संभाल सकते हो। सो फार्मिंग कैन ऑल्सो बी ए वेरी गुड बिजनेस प्रोपोजिशन। ये समझाने की समय आ चुका है, एंड वी रियली नीड टू डू दैट। वी कैन नॉट जस्ट गो एंड से दैट वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड डू नथिंग अबाउट इट। सो देवुदा, आपने जो बात कही है, आपने ये कहा कि इस मिट्टी से सोना कैसे उगेगा, उसका एक फार्मूला आपने बताया, और इस मिट्टी से कुछ ऐसे भी लोग उगे हैं जो पूरे दुनिया में गोल्डन रूल सेट किया, गोल्डन मैन के रूप में जाने गए, गोल्डन वुमेन के रूप में जाने गए। तो लेकिन गोल्डन आदमी तो तभी हो सकता है जब वो डिप्रेशन से फ्री होगा। आजकल देखा गया जो बच्चे हैं वो इतने मोबाइल पे रील में हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, माँ बाप से नहीं है, टीचर से नहीं है, गाइड से नहीं है, और उनके फेसबुक में और लिंक्डइन में हज़ारों लाखों फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो तन्हा है। उसको ठीक करने के लिए सॉइल तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन जो पनप रहा है उसमें जो बच्चे आ रहे हैं वो कैसे? Again, you have actually, touched the chord, because, I think I have seen, I personally gone through many instances from the known people that, how depression is actually killing them. So it's not anymore about, it is like any, one of the biggest crises today. I strongly believe depression is part of our life. Out of 10% if you see in or around you, somewhere down the line इन्होंने सब ने अपने लाइफ में कुछ हद तक डिप्रेशंस को देखे हैं. Today's digital world as creating this too much of exposure of anything is sometimes become very difficult to digest. लोगों का जो आज की डेट में मोबाइल्स से लेके इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, creating expectations, because digital world always showcase you as something which you are not. So जब ये होते हैं ना, रियलिटी एंड रियल, ये दोनों चीज़ जो है, रियल एंड रियल आई वुड से, ये जो दोनों चीज़ें, इसमें बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि आप आज की ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड में आप देख रहे हो, एक फेसबुक में इतने अच्छे अच्छे पिक्चर पोस्ट हो रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स शेयर हो रहे हैं, तो आप
अपने आप को उस मोमेंट के साथ हिस्सा लेने के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन पहुंच जाते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपके एफर्ट्स नहीं है, लेकिन आप अपने आप को वहाँ देखने चाहते हो। सो इनपुट्स एंड आउटपुट्स का गैप रह जाते हैं, एंड देन पीपल स्टार्टेड बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड दे feels that I might not have achieved anything in my life, or I have a huge gap in understanding or उसको फोमो कहते हैं aspiration. शायद। possibly so ये बहुत बड़ा डाइकोटोमी है इस फियर life ऑफ का। मिसिंग आउट। Yeah, you are correct. So I know you juggle your words quite nicely. So देवुदरा, फाइनली जस्ट वन क्वेश्चन कि हम भारत माँ कहते हैं, माँ तुझे सलाम हम कहते हैं, गाते भी हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम देवी देवताओं को मानते हैं, दुर्गा देवी, माँ काली। ऐसे मुल्क में वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला है? अगेन देखो, प्रॉब्लम क्या है पता है, रिस्पेक्ट is something that both the soul can give it to each other, right? Irrespective. Again, I told you at the very beginning, I strongly believe soul doesn't have a color, soul doesn't have a structure, soul is absolutely transparent. Same is respect. Respect is also doesn't have a color. So it is not necessarily a omen. So while I am fully agree to your point that in today's world women's security is becoming a huge concern. But let me tell you, like woman goes through menopause. Have you heard about male menopause? So this is evolving. It's like, as I said, it's not only about women's security. Of course, it is women's security is important. Lekin it's like that color of the soul and the transparent. More importantly, आपके respect among each other has to go up. We should not forget our roots. And again, the roots may be from anything. Right? You may be having a different affinity of faith. It might be Buddhism. It might be, you might feel comfortable or feel close to Allah. You may feel close to दुर्गा, वट एवर। बट एंड ऑफ द डे आप जब भी उस सामने बैठते हो, आप क्या करते हो? रिस्पेक्ट देते हो, ट्रस्ट देते हो, आप अपने फेथ को दोबारा से रिजुबिनेट करते हो। तो उसका भी तो कोई कलर नहीं है। तो वाई फीमेल सिक्योरिटी? Why not male security as well? Why not the security of human? Why not the security of every living, elements that exist in the world? I think one thing is missing is respect. One thing is missing is trust. One thing is missing is that, understanding each other, or rather empathy, rather not sympathy. So it requires more of this, rather than it's only not a topic of women security. It's about having these things in the mind. दैट्स रियली ब्रिलियंट। आपने देखा कि किस तरीके से देवुदा ने लेयर बाय लेयर हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और मेरा ये मानना है, मैं दोबारा उस बात को कहता हूँ जैसे देवुदा ने बताया कि ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ट्रस्ट के साथ साथ जो फेथ है, जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, और बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा तो इकनॉमी जो हम लोगों का ड्रीम है टॉप तक पहुंचने का, वो भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच देवुदा। Pleasure is all mine, Irfan bhai. Thank you for having me here. थैंक यू। Namaskar. थैंक यू।